अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर बेटियों का रिश्ता अपनों में किया जाए तो वो बच्ची का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें अपने ही जुल्म की इंतहा कर देते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर के इलाके में, जहां पर एक शख्स ने अपनी सगी खाला की बेटी को बीवी बनाया और उसके साथ फिर जिंदगी के 15 साल ऐसे गुजारे कि उसको अजियत ही देता रहा और आखिरकार मुबैना तौर पर उस शख्स ने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। खाला की बेटी से शादी करने वाले शोहर ने दी अपनी बीवी को अजियत 15 साल और फिर दिया बीवी को मुबैना तौर पर मार। इन्हें बड़े जुल्म कीते मेरी धी ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? इन्हें मारे और बंदा को नहीं मारना। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਖੱਟਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਇਹ। लाडली मेरी धी सी ते मैं बड़ी जलील होने मैनू करता मेरे पुत्र दोतरे ऐसे एडा जलील होया जिहड़ा साहब को ना धी दित्ती ना मरवा के रख ली। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूला, जो मुबैना तौर पर जिसको उसके शौहर ने कत्ल किया है, औरत के भाई। बात करते हैं कि अब तक के क्या मामलात हैं, इनको कब पता चला सारे मामले का, और इन्होंने जो अब तक की तफ्तीश हुई है इसमें इनको क्या पता चला है। सबसे पहले जी भाई, बड़ा अफसोस है आपकी बहन के साथ। एक तो इतना अरसा वो शख्स जुल्म करता रहा, आपकी वालदा ने हमें बताया है। उसके बाद फिर पता चलता है आप लोगों से हमें इस चीज़ का पता चला कि उसने ही मारा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਚਲੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆਸੀਆ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹੀ। अच्छा, नाल ही मान गया फिर फा लिया। पहले कहता चक्कर आया तो मैं रखिया तो जी, जी। मौत होगी। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਖੱਟਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ। नहीं, फा लिया उन्हें लिया या इन्हें मारी? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਫਾ ਲਿਆ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਫਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ, ਟੋਪੀ ਪਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿ ਖਿਲਰਿਆ ਪੁਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। रिपोर्ट आ गई? ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। कदों आई तुहाडे कोल? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ठीक है। रिपोर्ट इसकी आया से? ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਇੰਝ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ कि गला कुटिया गया तो फिर इनकी डेथ हुई। कब आप यहाँ पर आए हैं? मसलन आपकी जो बहन है कितने अरसे से आपके पास रह रही थी? पहले तो फैसलाबाद में थी, पर आपकी वालदा बता रही थी काफ़ी जुल्म करता रहा वो शख्स। जी जी। तो उसके बाद फिर कितना अर्सा यहाँ पर आपके पास, घर के पास ही रह रही थी वो? घर के पास ही रह रही थी, तकरीबन 5-6 साल हमारे घर के पास रहती थी। आते उधर से आप ही आए, खुद ही आए ने
दोनों जी ना खुद ही इधर आए ने, हमने नहीं कहा कि आप इधर आ जाओ। बेटी दा ਇਹ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ हाँ जी बिल्कुल जी। नाले ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖਵਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। अब ये जी ये मामला है। अब बकौल उस शख्स की कि उसने तो कत्ल नहीं किया, ये कहते हैं जी कि इन्होंने उसने ही किया है, उसने जो जुल्म किया इतना ज़्यादा, और उसके झूठ से शक जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि वो शामिल हो शख्स। तो मियाँ के हाथों यानी कि शोहर के हाथों बीवी का मुबैना कत्ल, और कितने जालमाना तरीके से उसको रखा गया। बेचारी का इलाज ये लोग कराते रहे, फौरी उसको हो गया, इलाज होता रहा, वो भी गरीब लोगों ने ही इलाज कराया इन लोगों ने, और उसने फिर सारी ज़िंदगी वो भाई कह रहा भूखा रखा, उसको खाने को रोटी नहीं दी और उस पर जुल्म होता रहा। वालदा बताती रही है मकतूला की मुबैना तौर पर शोहर के हाथों कत्ल होने वाली जो बीवी है उसकी वालदा, कि उसको मारता था, वो तशद्दुद करता था। और सबसे बड़ी बात है खाला का बेटा, जब वो उसकी बच्ची की खाला फोत होगी तो उसने और जुल्म बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ऐसा भी चीज़ सामने आती है कि वालदैन ये कहते हैं बेटियों को तू जा रही है तेरी मैयत जरिए वो वापस आए। तो इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का ख्याल रखें। अगर वो हक सच पे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है तो खुदारा उन पर जुल्म मत होने दें। ऐसे जालिम दरिंदों को, अपनी बेटियों को नुकसान मत पहुंचाने दें। जिसने नहीं सही होना वो नहीं होगा। सब्र कर करके सारी जिंदगी, अगर कोई बेटी पर हाथ उठाता है, उस पर जुल्म करता है, तो वो जालिम शख्स जो है इस काबिल नहीं कि आपकी बेटी उसके पास रहे। बकौल उस शख्स की कि उसने तो कत्ल नहीं किया, ये कहते हैं जी कि इन्होंने उसने ही किया है, उसने जो जुल्म किया इतना ज़्यादा, और उसके झूठ से शक जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि वो शामिल हो शख्स। तो मियाँ के हाथों यानी कि शोहर के हाथों बीवी का मुबैना कत्ल, और कितने जालमाना तरीके से उसको रखा गया। बेचारी का इलाज ये लोग कराते रहे, फौरी उसको हो गया, इलाज होता रहा, वो भी गरीब लोगों ने ही इलाज कराया इन लोगों ने, और उसने फिर सारी ज़िंदगी वो भाई कह रहा भूखा रखा, उसको खाने को रोटी नहीं दी और उस पर जुल्म होता रहा। वालदा बताती रही है मकतूला की मुबैना तौर पर शोहर के हाथों कत्ल होने वाली जो बीवी है उसकी वालदा, कि उसको मारता था, वो तशद्दुद करता था।